Good morning, dear students. Today we are going to discuss the chapter number 3, the changing earth. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजिंग अर्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चेंजिंग द वर्ड हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लास 7 SST. So let's see. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. देन वी विल स्टडी अबाउट दिस चैप्टर. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड केस स्टडी लाइक अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक. So let's see, and also we will discuss about earth movement like endogenic forces and what is exogenic forces, and in that we will also discuss sudden forces, diastrophic forces and earthquake, volcano and landslide. And also let's start the volcano. What is the volcano and how many type of volcano? Okay, then we see the two type volcano like active volcano, barren, and sleeping volcano, extinct volcano. This type of volcano we will discuss in this chapter. Means volcanoes are vent or opening in the earth's crust through which molten materials such as lava, rocks, which is called a fissure. Like the mountain or the volcanic cone is formed when the erupted materials accumulated around the vent, solidifying upon cooling. The vent is connected to the earth's interior and they are active volcanoes. These are currently erupting or have erupted recently, such as which type of mount or which type of volcano are known as active volcano. That name is first Mount St. Helens. तो जो माउंट हेंस एलेंस वॉल्केनो है ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो है. एंड सेकेंड इज स्ट्रोम्बोली. स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो हमारा सेकेंड एक्टिव वॉल्केनो है. बोथ लाइज ऑन एन आइसलैंड नियर इटली. ये दोनों क्या है, इटली की तरफ आइसलैंड. इज फेमस एक्टिव वॉल्केनो. And barren island in the Andaman and Nicobar Island is the only confirmed active volcano in South Asia. And now dormant volcano. What are dormant volcano? Then dormant volcano, also known as, are called sleeping volcano. These have not erupted recently but have the potential to do so again. और इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जो माउंट की है ये हमारा कहाँ पर, हवाई में पड़ता है. एंड वेसुवियस इन इटली. ये दोनों हमारे डोरमेंट वल्केनो कहलाते हैं. ओके, एंड नाउ we are going to discuss earthquake. What is the earthquake? Let's see. अर्थक्वेक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है. एन अर्थक्वेक
Let's see the earthquake. Like an earthquake is the shaking of the ground caused by the sudden release of energy in the earth crust. Earthquake happen along faults or on the edges of different plates. जो अर्थ होता है वो डिफरेंट प्लेट्स के एजेस जो उसमें डिसबैलेंस होता है तो अर्थक्वेक क्रिएट होता है. फॉल्स और ब्रेक्स इन अ प्लेट वेयर पीसेस ऑफ रॉक्स मूव. और इस कंडीशन में इसके जो मूव्स पीस होते हैं वो मूव्स होते हैं. एन अर्थक्वेक इज द shaking of the ground caused by the first point हम लोग देखा. एंड earthquake is the shaking of the ground caused by the. इसका रीजन क्या है? then we say caused by the sudden release of energy in the earth's crust. And also further we will discuss. And also it earthquake can cause a tsunami, means it causes an earthquake in the ocean, and earthquake can causes a tsunami. earthquake is also called the tremblers. इसको हम लोग tremblers के नाम से भी जानते हैं. And the point inside the crust where the pressure is related is called the focus. The point on the earth's surface vertically above the focus is called the epicenter. And now we are going to discuss. अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके एक्सरसाइज पर. द चेंजिंग अर्थ का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. And first question is, which of the following instrument is used to measure and record information about earthquake? तो earthquake को मापने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यह है पहला क्वेश्चन. और ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या वीआई. तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट विल बी रिएक्टर स्केल. तो रिएक्टर स्केल पे ही हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं. ओके. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी एक्सोजेनिक मोमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जो एक्सोजेनिक मोमेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है वेदरिंग के लिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखेंगे हम लोग. द बेल्ट लोकेटेड अराउंड द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज. तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकम पैसिफिक बेल्ट. द बेल्ट लोकेटेड अराउंड द इसका हो जाएगा सरकम पैसिफिक बेल्ट. मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा. हमने वहाँ पर सी लिख दिया, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट नहीं होगा, ये होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट. 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखेंगे. द रिएक्टर स्केल इज ग्रेडेड फ्रॉम. जो रिएक्टर स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक ग्रेड करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0 to 9.
0 to 9 ये ग्रेड करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वॉल्केनो? इनमें से कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है? ऑप्शन नंबर ए इज माउंट सेंट हेलेंस, सेकेंड इज माउंट की, सी इज विसियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हमारा, माउंट सेंट हेलेंस। ओके ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन द अर्ली 20th century? व्हाट, क्वेश्चन हम रीड करते हैं दोबारा, व्हाट प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन द अर्ली 20th century? 20वीं सेंचुरी में किसका ड्रिफ्ट थ्योरी इसके पहले प्रपोज करता है? तो हम देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर। देन आंसर विल बी अल्फ्रेड वेगनर प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी in the early 20th century. And now question number second, millions of years ago, बहुत सालों पहले, the land on earth was all hooked together in one super continent called, इसे हम किस नाम से जानते थे? That is Pangaea. That is known as Pangaea, where meaning of the Pangaea हजारों सालों पहले and that meaning of this word is pan. pan मतलब होता है all, pan means होता है all, and Gaia meaning is earth, means whole earth, all earth. And now question number third, the forces coming from within the earth and causing horizontal and vertical movements are known as what? That will be endogenic forces, means the forces coming from within the earth and causing horizontal and vertical movements are known as endogenic forces. Endogenic forces, okay. And fourth will be Mount Banyan in Australia is an what? Extinct volcano, means Mount Banyan in Australia is an extinct volcano. And last answer will be primary seismic waves move at an average speed of what? Primary seismic waves move at an average speed of 6 km per second. That will be 6 km per second. Okay. And now question number third, we are going to discuss match the following. अब हम डिस्कस करेंगे मैच द फॉलोइंग। ओके,
ऑप्शन नंबर ए थर्ड का कॉलम में लिखेंगे. फर्स्ट इज रिंग ऑफ फायर. फर्स्ट विल बी ring of fire, and second volcanic eruption. Volcanic eruption. And third will be information about earthquakes. Information about earthquakes. Information about earthquakes. And fourth will be Gorkha earthquake. Gorkha earthquake. Gorkha earthquake. And last will be Mount Kilimanjaro. That is Mount Kilimanjaro. And column B is extinct volcano. A will be extinct volcano, and B will be seismograph, and C will be Pacific Ocean, and C will be Pacific Ocean, and D will be Nepal earthquake. Nepal earthquake. And E is VEI. VEI. ओके, तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं. फर्स्ट रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन में. फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी. फर्स्ट का हम सी से मैच कराएंगे. जो हमारा रिंग ऑफ फायर है वो पैसिफिक ओशियन में है. सेकंड देखेंगे वोल्केनिक इरप्शन. और वोल्केनिक इरप्शन हमारा कहाँ है? तो नाम से ही देखेंगे VEI. ओके, VEI. एंड नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखेंगे. थर्ड हम लोग डिस्कस इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक. तभी मैंने बताया था कि अर्थक्वेक का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो वो है हमारा सिस्मोग्राफ. एंड नाउ गोरखा अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे. देन गोरखा अर्थक्वेक हमारा नेपाल अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं. देन अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक आल्सो नोन एज द गोरखा अर्थक्वेक killed more than 8,800 people and injured more than 23,000. It occurred at 11:56 NST on 25 April with a magnitude of 7.8 on the Richter scale. Its epicenter was east of the district of Lambunj. That means 8,800 people was killed and more than 23,000 injured. Okay, and at 11:56 NST on 25 April with a magnitude of 7.8 on the Richter scale. And now क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लास्ट. माउंट किलिमंजारो ये क्या होता है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ब्रीफ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. एंड नाउ क्लास विल बी ओवर. इफ यू हैव एनी डाउट then you can consult me and I will solve your problem. And in next video we will discuss the next chapter,
chapter number 4, and the name of the chapter is Major Land Forms. Okay, and if you have any doubt, then you can consult us and properly noted all points. So we will make in next video. Goodbye. अरे बस चल रहा है, रुकिए, हम लोग चल रहे हैं, चलिए तब क्या सर निकलना है। सर ये आप अपना रख लीजिए, अब आपका ये सब हमारा आप एक और होगा ना, 6 से 7 8 का ऊपर ही, 8 का ऊपर है, ये तीनों को क्लास क्लास नीचे ना मॉर्निंग में, फिर मैं लेते गया था ना, इसको ले जाना पड़ेगा जैसा आप ले जाना, ये इस वाला से चल रहा है ना, ले जाएंगे ले जाएंगे फर्स्ट क्लास लेना पड़ेगा, क्लास नहीं है ये इस वाला छुट्टी है, क्लास नहीं है, हाँ कल नहीं है, कल छुट्टी हो गई है, उसकी कोई सरदार ये मैथ का हिमानी में चलिए जी डिस्कस हो जाता है। चलिए वो जो मिलाया था वो पवन सर का ही नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा, और राहुल सर का नंबर है, वो बंद कर दीजिएगा सर। हाँ सर, इसको सेव कर दीजिए। हो गया? दोनों।